Assalamu alaikum दोस्तों, welcome to another video of Bitcoin update. Bitcoin currently 94,000 के करीब करीब ट्रेड हो रहा है एंड वी आर ऑन अ डेली टाइम फ्रेम बेसिस पे। और आज जो है वो ईयरली कैंडल क्लोज होनी है बिटकॉइन की, सो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर वी बिगिन इनटू आवर टेक्निकल एनालिसिस बीटीसी के, I would like to wish everybody a very very happy and prosperous new year. इस न्यू ईयर में अल्लाह पाक आप सबको मुबारक कामयाब करे और आप सबकी ट्रेडिंग की स्किल्स को एक लेवल और मल्टीपल फोल्ड से ऊपर लेके जाए इंशाल्लाह आमीन, ताकि आपकी ट्रेडिंग एंड स्ट्रैटेजीज बेहतर हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ बीटीसी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बीटीसी जो है इस चैनल में ट्रेड हो रहा है। इनफैक्ट लेट मी गेट रिड ऑफ दिस गाय। So BTC जो है, we're gonna look into the range, right? Which is what we had looked into last week as well, couple of days ago, कि BTC currently इस range में trade हो रहा है। And if you remember my previous 2 या 3 दिन पहले की वीडियो, which is what I have showed it to you, कि मैंने कुछ areas mark कराए थे आपको कि for example, which is something I'm gonna highlight it all over again, right? ताकि you guys would remember. If you haven't seen the video, I would recommend you to watch it again. Otherwise, I'm gonna touch base some of the key points ताकि आपको पता चल सके कि क्या है क्या नहीं है. So basically, what happened is, if you go back to December last year, so BTC जो है वो currently इसी तरीके से ट्रेड हो रहा था. And let me fix this, right? So similar scenario है कि EMA 50 के above trade हो रहा था BTC just like this week, or EMA 200 below थी, which is what we have. EMA 200 below, this whole area is CME gap, which is something we have discussed in the past as well. Let me reset the chart so you guys can see the similarities, right? And you guys kind of understand what exactly is going to happen. So what happened last year, December 2024, is basically एक ऊपर wick लगी थी, another fake out हुआ था here, मार्केट ने सो बेसिकली चैनल में ट्रेड हो रहा था, मार्केट ने नीचे का एक बेरिश सेंटिमेंट दिया, which is exactly what happened. So अगर if I were to go back, so remember this, right, कि इस ट्रेंड में BTC ट्रेड हो रहा था, it went up, it went down, then it went all the way up, right? यहाँ से ट्रेंड ने ब्रेक किया and kind of gave us a rally of roughly about here. So 65% का हमें यहाँ से रैली मिली थी. So and if you were to look at the trend line, right, so हमारी जो ट्रेंड बना था something like this, down, up, high, low, एक फेक आउट, then यहाँ से मार्केट another फेक आउट यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब की, then यहाँ आई मार्केट ने फिर एक फेक आउट दिया नीचे की साइड पे, फिर ऊपर की साइड पे गई and all the way यहाँ चली गई मार्केट, right? So keep this trend in mind. So and let me get rid of this guy for a bit. अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ भी सिमिलर ट्रेंड प्ले आउट हो रहा है, लेकिन द मिसिंग पार्ट इज द फेक आउट एट द बॉटम. सो इफ यू विल लुक एट द ट्रेंड, राइट, ये एक ट्रेंड हुआ, ये एक ट्रेंड आया, ये ऊपर की तरफ ट्रेंड गया, एक फेक आउट हुआ, नीचे की तरफ मार्केट आई, ऊपर की तरफ एक और अनदर फेक आउट हुआ, नीचे की तरफ आई, यहाँ गई, यहाँ आई, लेकिन मार्केट का एक मूव जो कि मैंने आपको बताया था, ये मूव बाकी है, और जैसे ये मूव बाकी कंप्लीट होगा, मार्केट विल बाउंस बैक फ्रॉम दिस एरिया ऑल द वे टू द अपसाइड, राइट? सो मार्केट की सिमिलरिटीज एंड मार्केट की अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी क्रूशल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि वो किस एरिया में जाके लगेगी, सो यू गाइस कैन नो. So, right, so another thing, so going back to the history again, all over again, right? So this move still pending कि मार्केट का ये मूव आना है, अब वो मूव यहाँ लगता है, यहाँ लगता है, यहाँ लगता है, which is something we're going to talk about in this video, right? So let me get rid of all these drawings for a bit ताकि मैं कुछ चीज़ें दिखा सकूं. But before we get into the market की next move, I'm going to show you a few other things as well ताकि और हम start करते हैं crypto bubble से. So on the hourly basis, as you can see, some of the coin has pumped a bit.
जैसे Pepe, VIF, HNT, Move, XDC, और most of the coins are in red. डेली बेसिस पे देखते हैं तो अगेन सिमिलर स्टोरी, पैपे ने मूव किया है, वर्चुअल थोड़ा 11% का मूव दिया है, ओम ने पंप किया है, मोस्ट ऑफ द कॉइन्स आर इन रेड. On a weekly basis पे similar story as well कि most of the coins except this new coins which I think ये 2-4 दिन पहले आया था, some sort of AI coin, ये ग्रीन में है, वर्चुअल 30% का ऑलमोस्ट मूव दिया है, BGB में 20% का मूव आया है, FTT में 12% का मूव आया है, पेपे में about 10%, and most of the coins are in red. Yearly basis पे देखते हैं तो you can it can kind of tell you the whole different story, right? Most of the coins pump हुए except for the few which are some of them are a good project. For example, OP Dot is gonna pump a bit. I think ये pump हुआ था compared to historic के, and I'm gonna show you the another chart which is something I look at later on at some stage, जो कि दिखाता है कि historically मार्केट ने क्या हाई लगाया और उस हाई से कितना दूर है. So yeah, like I said, 20%, 2,000% in fact rather. विफ ने पंप किया, BGB, Pepe, ओम ने like crazy pump. So some of the coins, Floki. So some of the most of the coins are in green, except a few जो कि pump होंगे. So ASIA is one of the amazing project जो कि next is bull run में ये pump होगा. Now coming back to on-chain analysis, which is very very important. Like I said, something I keep an eye out. सबसे पहले मैं start करता हूँ Vitalik से कि I always keep an eye out on this guy because the guy is a genius. So it's very very important to keep an eye out. मैंने देखा था इसके इनफ्लो में कुछ inflows and outflows हुए थे. Something I keep an eye out कि भाई what he's buying, maybe I could be interested in those things as well. So always good to know कि भाई इन भैया ने क्या किया inflow and outflow. इनका recently कोई inflow and outflow हुआ था, and I think there was some swaps as well, which is, let's see अगर यहाँ शो होता है. Let me get rid of this guy. जब तक ये लोड होता है, वी कैन कम बैक टू इट. आई थिंक ये, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, वाज जूस बॉक्स करके कोई एक कॉइन था जो उन्होंने स्वैप किया था. इट्स नॉट लोडिंग, सो वी कैन कम बैक टू इट. मीनवाइल, गोइंग बैक टू द लिक्विडेशन, व्हाट हैपेंड इज मार्केट ने, इफ यू रिमेंबर इट यस्टरडेज की स्टोरी, तो यस्टरडे मार्केट में मेनली जो लोग लिक्विडेट हुए थे वो हुए थे शॉर्ट साइड पे. आज मार्केट के डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं, which is what I'm going to explain it to you in next couple of seconds कि what exactly happened and how you can avoid it, or which is where most of the people are going wrong, right? क्योंकि if I can understand the market, anybody can, right? Which is what I'm here for, to explain it to you, to understand market क्या है. For example, this guy shouldn't have got liquidated at all. 24 आवर्स की बेसिस पे देखते हैं, सो अबाउट रफली अबाउट $222 million लिक्विडेट हुए हैं, ऑफ विच मेनली लॉन्ग के 60% हैं, 40% शॉर्ट के हैं, विच हैपन yesterday. So all these reds represent the short, all these greens represent the long जो कि वो लिक्विडेट हुए हैं. आते हैं RSI हीट मैप पे. सो वी कैन लुक इनटू वन डे की बेसिस पे, वन डे की चार्ट पे कैन गिव अस अ गुड पिक्चर शॉर्ट टर्म मूव मार्केट के क्या हो सकते हैं. सो शॉर्ट टर्म बेसिस पे मार्केट में लिक्विडिटी पड़ी हुई है रफली अराउंड $90,000 तक ऑन दी डाउन साइड, और अप साइड पे हमारे पास तकरीबन पड़ी हुई है लिक्विडिटी अराउंड 97,250. इफ आई वर टू गो ऑन 2 वीक्स चार्ट, ये मेनली शो करेगी कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव ओपन अप अ शॉर्ट, सो सारी लिक्विडिटी जो है वो टॉप साइड पे होगी, या एज यू कैन सी, एज यू कैन इमेजिन, राइट. सो द बिग चंक ऑफ लिक्विडिटी इज ऑन द टॉप. बॉटम साइड पे थोड़ी सी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लेकिन मेनली ऑन द upside as well, right? So these are the range, which is something you guys should keep an eye out. RSI heat map को देखते हैं तो on let me change it to 24 hours की basis पे. So on 24 hours की basis पे, as you can see, most of the coins are in neutral except for one or two coins जो कि slightly pump हुए हैं. For example, Virtual जो कि one of the amazing AI coin है, लेकिन it's overbought zone में है, और ये strong buying में है. ये couple of coins, USDC, of course, you know the news, right? USDC strong zone में है because of the conversion between USDT and USDC की वजह से. Another important things we should be looking at right now is Bitcoin and Ethereum की return.
सो बिटकॉइन एंड इथेरियम के अगर हम मंथली रिटर्न देखें तो मंथली रिटर्न बीटीसी के आ चुके हैं फॉर दिसंबर विच इज़ रफली अबाउट -2.5%, क्योंकि द मार्केट तकरीबन if you were to see for last couple of days, in fact last couple of weeks the market bearish है, but this is gonna go bonkers. यहाँ से अगर हम इथेरियम के मंथली रिटर्न देखें so it's down roughly about 10%. दिसंबर में जनवरी फरवरी मार्च अगर आप हिस्टोरिकली देखें, सो हिस्टोरिकली आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट मोस्ट ऑफ बिग चंक, वो मेनली ग्रीन में होता है, especially right after BTC halving. So this was BTC halving यहाँ हुई थी, तो BTC इथेरियम ने क्रेजी पंप लिया था अबाउट 78% का ऑन मंथली बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑन द क्वार्टरली बेसिस, राइट. सेम थिंग 2024 में हैविंग हुई है, तो like not here, but 2024 में having हुई है, तो फर्स्ट क्वार्टर इज गोना बी क्रेजी एज वेल. क्वार्टरली की बात करें रिटर्न्स की, सो 48% के रफली हमारे क्वार्टरली रिटर्न्स हुए हैं, एंड ऑन इथेरियम पे हमारे तकरीबन अबाउट रफली अबाउट क्लोज टू 30% हुए. सो गोइंग बैक टू द BTC अपडेट, if you were to look at the BTC chart, right, which is something I wanted to show to you, so let me go, in fact let me start off with the वीकली कैंडल पे. सो वीकली कैंडल जो हमारी इस वक्त करंटली बनी है वो एक डॉजी कैंडल बन रही है, एंड अगर हम यहाँ से जाते हैं मंथली कैंडल पे, क्योंकि बिकॉज इट्स 31st, राइट, सो मंथली कैंडल एक शो करता है कि ह्यूज सेलिंग प्रेशर था ऑल द वे फ्रॉम $108,000 से, जैसे बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई हिट किया. Another important thing to look at is हमारी 12 months की कैंडल, ईयरली कैंडल. सो एज यू कैन सी ये ईयरली कैंडल जो हैज़ बीन क्रेजी bullish, तो सॉलिड ग्रीन कैंडल हमारी हुई है, और रफली ऑन ईयर ओवर ईयर बेसिस पे हमें 200% के रिटर्न मिले हैं. बट दिस इज नथिंग कंपेयर टू व्हाट्स गोना कम नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ईयर एज वेल. सो अगर हमें सिमिलर इफ नॉट डिफरेंट हमें वो मिलते हैं, तो BTC की एज यू कैन सी, राइट, मार्केट प्राइस उस वक्त रफली अराउंड क्लोजर टू 200,000 के करीब हो सकती है अगर इफ यू कैन गेट to see the similar pump in the market. But like I said, market is going to be crazy, it's going to be bonkers, right? So coming back to 4 hours chart, 4 hours chart की basis पर let me reset. So अगर आप 4 hours की chart पे देखें, let me show you few things, right? So which is important and something you guys should know. So BTC जो है वो mainly इस एरिया में, इस रेंज में ट्रेड हो रहा है. सो द वे मार्केट इज ट्रेडिंग इन लास्ट 4 आवर्स की बेसिस पे इज नीचे गया, फिर ऊपर आया, इनफैक्ट आई वांटेड टू चेंज द कलर, फिर नीचे पे मार्केट ने लिक्विडेशन स्वीप ली, फिर फर्दर डाउन गया, फिर थोड़ा ऊपर आया, फिर नीचे आया, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की, यहाँ से की, विच इज समथिंग आई एम गोना एक्सप्लेन टू यू. और ये जो एरिया है इसको इसने करंटली break कर दिया इस ट्रेंड लाइन को, right? So let me get rid of this guy, right, for a second, because I wanted to explain it to you and I might have to go down to the lower level as well, right? So as you can see इस वक्त मार्केट जो है वो रीटेस्ट हो रही है इस एरिया पे, इस चैनल को. लेकिन what happened is कि let me get rid of my EMA for a second. Let me close EMA 50. Let me close this so you guys can see clearly, and I'm gonna get rid of this guy as well, ताकि आपको समझ आ सके what exactly happened in the market. So हुआ क्या कि basically and let me get rid of this guy too, right? लेकिन you understand, right, कि market इस channel के अंदर ट्रेड कर रही है and it went up a bit, लेकिन यहाँ से जो है मार्केट ने रिजेक्शन ली और इसके बाद रीटेस्ट होगा. But couple of things I wanted to explain it to you guys. So for that I need to को मैं रीसेट कर लेता हूँ so you guys understand what exactly happened. So yesterday what happened is कि मार्केट ट्रेड कर रही थी and you know, right, you understand the candlestick pattern. अगर आपको नहीं पता तो ये एक हैमर कैंडल है जो कि बेसिकली ट्रेंड के रिवर्सल को इंडिकेट करता है. सो द मिनट यू वुड सी अ हैमर कैंडल, मेनली ट्रेंड वहाँ से रिवर्सल होता है. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इसका पैटर्न क्या है. सो सिमिलरली यू कैन सी, राइट, यहाँ एक हैमर कैंडल बनी और मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका. सो या लाइक आई सेड, ये हैमर कैंडल ट्रेंड के रिवर्सल को करता है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट, राइट. सो व्हाट हैपन इज जब मार्केट
let me grab my pen. So basically यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ और उसके बाद मार्केट नीचे जाना शुरू हुई, नीचे गई, एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द पीपल द मिनट दे सॉ दिस कैंडल दे ओपन अप अ शॉर्ट। तो उन्होंने जब शॉर्ट खोला विच वाज राइट फ्रॉम $94,000 ऑल द वे टू 91,600, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी थी। सो इफ यू वर टू गो इनटू द वीकली साइड, राइट, आप यहाँ से देख सकते हैं, लेट मी ड्रॉ द सपोर्ट लाइन फॉर यू गाइस। ये सॉलिड सपोर्ट यहाँ से बनी है और right, so let me go back to the 1 hour chart again. Where were we? Let me reset the chart. Yeah, so this is where we were, right? So I wanted to show you a couple of things, right? सबसे पहली चीज, on a weekly time frame basis पे you went in, आपने एक सपोर्ट लाइन बना ली कि भाई यहाँ से इसको मार्केट को कहाँ से सपोर्ट मिल रही है और कहाँ से रेसिस्टेंस मिल रही है। तो ये सपोर्ट एरिया थी। जब मार्केट इसने सपोर्ट एरिया को रीटेस्ट किया तो मार्केट ने वहाँ से बाउंस बैक किया और जितने सारे लोगों ने ऑल ऑफ अ सडन यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ और जितने लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट खोला हुआ था दे गॉट लिक्विडेटेड, क्योंकि व्हाट हैपन इज जिन्होंने यहाँ शॉर्ट खोला था वो तो यहाँ वो आ गए, लेकिन लेकिन बेसिकली क्या हुआ कि जैसे ही सपोर्ट की एरिया पे गई मार्केट वहां से बाउंस बैक हुई एंड मोस्ट ऑफ द पीपल गॉट लिक्विडेटेड। उन्होंने जब मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे सॉ अ सॉलिड ग्रीन कैंडल और उसके बाद ये जो कैंडल थी ये वाली कैंडल, लेट मी हाईलाइट दिस फॉर यू गाइस। सो बेसिकली जब इस कैंडल ने इस वाली मार्केट से ऊपर क्लोजिंग दी from this guy, so what most of the people, so clearly this indicates कि market bullish हो चुकी है और यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी। but one thing they completely forgot to understand कि मार्केट ऊपर तो गई है और उसने यहाँ से लिक्विडिटी हंट, जो कि मेनली मोस्ट ऑफ द पीपल जब यहाँ से इन्होंने लॉन्ग खोला तो उनके जो स्टॉप लॉसेस थे वो थे यहाँ पर। तो मार्केट क्या गई कि इस कैंडल को ऊपर, let me get rid of most of the design so you guys can see clearly. Hang on a sec. Let me get rid of this object, right? So let me explain it to you all over again, right? हमारी सपोर्ट यहाँ बन रही थी, so this was the support area roughly, right? यहाँ हमारी वीकली बेसिस पे हमारे पास यहाँ सपोर्ट थी। तो मार्केट ने जैसे ही यहाँ से नीचे गई, लोगों ने शॉर्ट खोला एंड इस सपोर्ट लाइन से मोस्ट ऑफ द पीपल अनलेस दे हैवंट बुक्ड देयर ट्रेड इन प्रॉफिट दे गॉट लिक्विडेटेड फ्रॉम हियर। सो मार्केट ने एक विक लगाई, लिक्विडिटी स्वीप की और यहाँ से मार्केट ने बाउंस किया, एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बनाई, फिर अनदर सॉलिड ग्रीन कैंडल बनाई और इस एरिया से ऊपर जो लोगों के स्टॉप लॉस थे उनको हंट किया और यहाँ पे एक विक लगाई और सारे पीपल लिक्विडेट हुए। लेकिन अनदर हैमर कैंडल, लाइक आई सेड, इज अ ट्रेंड रिवर्सल, सो ऑलवेज कीप एन आई आउट कि इन कैंडल्स पे कैंडल्स का बिहेवियर कैसा है, इनका पैटर्न कैसा है। मार्केट दोबारा से सॉलिड ग्रीन रेड हुई और लोगों ने जो यहाँ लिक्विडेट हुए थे उन्होंने फिर दोबारा से शॉर्ट खोला और उन्होंने शॉर्ट खोला और अगेन सपोर्ट की लाइन की बेसिस पे आई और उस सपोर्ट एरिया से फिर जाके मार्केट ने लिक्विडिटी सीप की और दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। बिकॉज व्हाट हैपन इज, again let me reset it for you. So what happened most of the time which you guys don't understand and something you guys should keep an eye out कि जब भी यहाँ से आपने शॉर्ट खोला और मार्केट ऊपर गई, so you guys should never ever open, even ये इससे ऊपर भी क्लोज हो जाए, never ever open your trade here। भले ही यहाँ एक सॉलिड ग्रीन कैंडल है और उसके बाद ये वाली ग्रीन कैंडल है, नेवर ओपन अप योर ट्रेड, क्योंकि उसके बाद क्या होता है मार्केट, यू हैव टू वेट फॉर द मार्केट टू रीटेस्ट। मार्केट जैसे ही रीटेस्ट हुई, दिस इज द पॉइंट जहां से आपने एंट्री लेनी है। जहां से आपने एंट्री ली और आपको एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड द मार्केट, राइट, कि रिमेंबर, लेट मी ड्रॉ इट बैक अगेन, राइट, मार्केट एक चैनल में चल रही थी, मार्केट वॉज इन दिस चैनल, इस चैनल में ट्रेड हो रही थी। तो आपको, सो यू गाइस शुड हैव डन कि यू गाइस शुड हैव नोन कि भाई मार्केट इस चैनल में रिटेस्ट होने दोबारा आएगी। तो जैसे यहाँ से ऊपर की तरफ गई, इसी एरिया से मार्केट ने
बाउंस बैक किया और इस एरिया को दोबारा क्लोजर टू हमारी सपोर्ट लाइन जो हमारी वीकली बेसिस पे बनी हुई थी वहां से बाउंस बैक लिया। तो इफ यू वांटेड टू ओपन अप अ लॉन्ग पोजीशन, दिस इज वेयर योर एंट्री पॉइंट इज। कभी भी इन सॉलिड कैंडल की बेसिस पे आप लॉन्ग की एंट्री या आप अपनी ट्रेड की ओपनिंग नहीं करते, क्योंकि मार्केट ने इस एरिया को आके टेस्ट करना था, रीटेस्ट करना था, क्योंकि यहाँ पर एक ह्यूज फेयर वैल्यू गैप था। और मार्केट हमेशा यहाँ से आके जब इसमें होती है तो मार्केट इज गोना ऑलवेज रीटेस्ट इस एरिया में आके। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने सबने शॉर्ट खोला था द मिनट मार्केट में ना, उसने दोबारा से जाके सबको लिक्विडेट कर दिया। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड मार्केट किसकी तरफ जाएगी, किस तरीके से बिहेव करेगी। Remember, friend is your friend, my buddy. So always remember, right? Friend is your friend. अगर आपको ये ट्रेंड्स का समझ नहीं है तो try to follow me on the YouTube channel so I can guide you guys कि आपने किस तरीके से कहाँ से ट्रेड लेनी है। जैसे ये फेक आउट होते हैं, ये सपोर्ट एरियाज हैं। सो ऑलवेज स्टार्ट ऑफ विथ योर वीकली चार्ट। आपने अपने सपोर्ट एरियाज, आपने अपनी रेसिस्टेंस एरिया को आपने डिफाइन किया अपने चार्ट पे। उसके बाद पैटर्न को फॉर्म किया कि किस पैटर्न में ट्रेड हो रही है। सो यू नो राइट कि मार्केट में कहाँ से एंट्री लेनी है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को पता था कि मैंने यहाँ से कभी भी एंट्री नहीं लेनी। अ न्यू मार्केट इज गोना कम डाउन, देन आई एम गोना ओपन अप अ लॉन्ग पोजीशन। सो क्लियरली जैसे ही मार्केट ने रीटेस्ट किया, आई ओपन अप अ लॉन्ग पोजीशन और यहाँ जाके आई न्यू, क्योंकि मेरा जो टारगेट है, माई टारगेट वॉज दिस गाय, इट वॉज नेवर दिस गाय, राइट। क्योंकि आपको पता है कि मेरी प्रीवियस जो हाई लगी है विक की, दिस वॉज दिस हाई। सो पहला मेरा जो एरिया होगा, माई फर्स्ट टीपी वुड बी दिस गाय, ऑलवेज दिस गाय, राइट, क्योंकि ये मेरे ट्रेंड को कंफर्म करता है। माई सेकंड टीपी वुड बी दिस गाय, क्योंकि ये मेरी प्रीवियस विक की हाई लगी है। एंड दिस इज द चेरी ऑन टॉप। अगर मार्केट उससे ऊपर जाती है, नीचे जाती है, मेरा पैसा बनता है। आई कीप ए क्लोज आई आउट। और मैं यूजली क्या करता हूँ, द मिनट मैं लॉन्ग खोलता हूँ, आई मूव, ऑलवेज कीप एन आई आउट ऑन द ट्रेड, और मैं अपने स्टॉप लॉस को मूव करता रहता हूँ कि मार्केट ने दोबारा कहीं से भी अगर रीटेस्ट या रीबाउंड लिया तो मैं हमेशा मेरी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होगी, मैं उसको लॉस में क्लोज नहीं करता। तो अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ है एंड द मिनट आई सी दिस कैंडल, मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड के स्टॉप लॉस को मूव कर लेता हूँ। सो दिस इज द वे आई ट्रेड, ताकि मेरे कोई भी मेरी ट्रेड है वो लॉस में नहीं जा सके। सो दिस इज द होल पॉइंट। सो द मिनट मार्केट वैन अप, मैंने यहाँ अपने स्टॉप लॉस को मूव कर लिया। द मिनट मार्केट वैन अप टू इस एरिया को, क्योंकि आई न्यू राइट ये मेरी ट्रेड को रिकन्फर्म करता है। दिस वाज द पैटर्न जो कि मार्केट में ट्रेड हो रही थी। फिर द मार्केट वैन अप, मैंने यहाँ स्टॉप लॉस लगा लिया और जब मेरी ट्रेड क्लोज हुई, क्लोज अराउंड हियर। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको पता हो कि मार्केट ने किस तरीके से करना है। अब मार्केट के नेक्स्ट मूव क्या होंगे। मार्केट ने देखें, लाइक आई सेड, like I explained it to you a minute ago, let me get rid of all these drawings. So market ने एक नीचे जाके एक retest आना है, that retest, the same retest which is what I showed it to you guys, right? So market ने उस एरिया को retest करना है। अब वो आज करे या कल करे या something, you have to keep an eye out कि मार्केट किस तरीके से कर रही है। लेकिन the minute you see a choppy market, I would recommend you कि आप उस वक्त ट्रेड ओपन करें जब यहाँ पे आपकी सपोर्ट, ऑलवेज आप अपने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एरिया को डिफाइन करें। सो द मिनट इट वेन अप टू रेसिस्टेंस एरिया और मार्केट की वहाँ पैटर्न और चीज़ें कंफर्मेशन होती है, यू कैन ओपन अप अ शॉर्ट। द मिनट इट हिट्स हियर, मार्केट पे रीटेस्ट आता है, हो सकता है यहाँ ब्रेक लग जाए, राइट। सो उस रीटेस्ट के बाद यू ओपन अप योर लॉन्ग पोजीशन, दैट्स द वे टू ट्रेड। और उस तरीके से जैसे मैंने कहा था, आपको बताया था, विच इज व्हाट आई एक्सप्लेन इट टू यू, मार्केट ने ये अपसाइड पे फेक आउट दिया, एक ये दिया, और डाउन साइड पे एक फेक आउट बाकी है, विच इज समथिंग आई एम कीपिंग एन आई आउट। जैसे ही उस एरिया को टच करेगी, विच आई थिंक इज रफली अराउंड दिस एरिया, $87,000 to $88,000, क्योंकि अभी तक ये currently एक solid support बनी हुई है। whether it's gonna break it or not, I'm not 100% sure, क्योंकि the volume is not huge at the moment, और कल वैसे ही न्यू ईयर है, so I thought like I'll come online
and explain all these patterns and everything to you guys right before year end closing में, क्योंकि अगर हम अपनी डेली कैंडल को देखें तो डेली कैंडल में क्लोज होने में रफली 3 आवर्स बाकी हैं, हमारी वीक 12 महीने की कैंडल के क्लोज होने में भी एग्जैक्टली सेम आवर्स बाकी हैं. सो आई थॉट लाइक आई कम ऑनलाइन शो टू यू गाइस कि ट्रेंड किस एरिया में होना है. तो जैसे ही मार्केट चॉपी हो, ट्राई नॉट टू ट्रेड. इफ यू डू ट्रेड, कीप एन आई आउट ऑन द पैटर्न. और मार्केट में हमेशा गलत जगह से एंट्री नहीं लेनी, अदरवाइज यू वुड गेट लिक्विडेटेड. सो आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड वंस अगेन आई हैव वेरी हैप्पी न्यू ईयर.